કારણ જે ચાર પદાર્થ મળ્યા છે એ ધનભાગ્ય આત્માઓ કહેવાય. એવો આજનો આ ગોરકુંજ ગામની પવિત્ર ધર્મધારા પર 7-8 દિવસથી કાર્યક્રમ ચાલે છે. ત્યારે સુંદર સાજી મેન હેતુ, મેન મકસદ, મેન આ બ્રહ્માંડની અંદર એક જાગણીના બ્રહ્માંડની અંદર એક જાગણીની લીલા ચાલે છે. જાગરણની લીલાની અંદર એને આપણે પરમધામની અંદર કોલ જે કરેલો એ કોલ નિભાવવાનો છે. એ કોલ કયો? જાગો અને જગાવો. પહેલા શબ્દ જાગો. સૌ સુંદર સાથને પહેલા તો આપણા જ્યાં સુધી ખુદ આપણે જાગતા નહીં હોય, આપણે ઊંઘેલા હોય, કોઈ પણ મનુષ્ય જ્યારે ઊંઘતો હોય, ભર નિંદ્રાની અંદર ઊંઘતો હોય તો એને કોઈ પણ પ્રકારની સુધબુધ હોતી નથી. એ બીજાને જગાવી શકતો નથી. ત્યારે જાગતો હોય એ જ મનુષ્ય, એ જ માનવ બીજાને જગાડી શકે છે. એ જ આપણો કોલ છે કે જાગો અને જગાવો. તો પહેલો તો શબ્દ જાગો, એ શબ્દ આપણે સૌ સુંદર સાથ પર લાગુ પડે છે. હર કોઈ માનવ, હર કોઈ પરમધામની બ્રહ્મ આત્મા છે જેને પરમધામની અંદર કોલ કરેલો છે જાગો ને જગાવવાનો. સૌ પ્રથમ આપણે એ કોલ નિભાવવાનો છે. ત્યારે પહેલા આપણે જાગવાનું. જાગવાનું એટલે પરમધામની શ્યામા મહારાણી સુંદરબાઈની આત્મ સદગુરુ નિર્દેશનજી એને પ્રારંભ કર્યો. પરમધામની 12,000 બ્રહ્માત્માઓના શિરદાર શ્યામા મહારાણી છે. એને આ સંસારની અંદર જાગરણ લીલાની અંદર એમને પ્રારંભ કર્યો. એ સૌને આપણને લાગુ પડે છે. એના દિલની અંદર એક વાત કે મેં કોણ કહાથી આયા, કહા હૈ મેરા ભરતા. એની ખોજ માટે, પોતાની આત્મને જાગૃત કરવા માટે એમને પોતાના પ્રાણ પણ કોઈ પરવા કરી નથી. માતા પિતા ઘરબાર છોડી એમને પોતાના પ્રાણને સંકટમાં મૂકી એક પાર બ્રહ્મ પરમાત્માના નામ પર શીશ અર્પણ કરીને એમને કઈ રાજ્ય મહારાજની કૃપાથી અંકુર તો પરમધામનું છે. એ 40 વર્ષ બાદ એને તારતમ જ્ઞાન મળ્યું, સાક્ષાત રાજ્ય મહારાજ મળ્યા. ત્યારે એની આત્મની પહેચાન થઈ કે તું તો પરમધામની સુંદરબાઈની આત્મ છે. એ રાજ્ય મહારાજે એને પહેચાન કરાવી, એ આત્મને જાગૃત કરી. તો ત્યારે સુંદર સાથી આપણે પણ એ જ. એના પછી ગાંધીભાઈને ત્યાં, ગાંધીભાઈ પણ પરમધામની આત્મ છે. ગાંધીભાઈને જ્યારે મિલાપ થાય ત્યારે એમને પણ પહેલો તારતમ એમને આપ્યો અને કીધું, જબ સુનાઈ પાર કી બાત તબ ભાઈ ધની કી પહેચાન, अपनो घरों लिए बुलाई. પહેચાન કે પરમધામનો જે સાથ છે સાક્ષાત રાજ્ય મહારાજ છે. એમ કરીને એમને પોતાને ઘેર બોલાવી લીધા અને પોતાને ઘેર એવા મંડાણ મંડાયા. સૌ સુંદર સાથની તન મન ધનથી સેવા કરવા લાગ્યા. અને રાજ્ય મહારાજે એમને ત્યાં આડિકા લીલા કરી. એ ગાંધીભાઈની આત્મને એટલી બધી કુરબાની કરી પોતાની આત્મને જાગૃત કરવા માટે. સાક્ષાત સદગુરુ દેવચંદજીના ધામની અંદર રાજ્ય મહારાજ છે. ત્યારે એને કેટલાય વર્ષ સુધી 1678 થી માંડીને 1712 સુધી એ ગાંધીભાઈ સૌ સુંદર સાથની સેવા કરી. રાજ્ય મહારાજે આડિકા લીલા કરી અને સૌ સુંદર સાથને 313 આત્માઓને પણ જાગૃત કરી. ત્યાર પછી એક મહેરાજ ઠાકોર જેની અંદર ઇન્દ્રાવતીની આત્મ છે. એની અંદર 500 શક્તિ બિરાજમાન થવાની હતી. ત્યારે સુંદર સાજી એ પણ 12 વર્ષની ઉંમરની અંદર એ આત્મ એના ચરણોની રાજ્ય મહારાજના ચરણોની અંદર પહોંચી અને એ આત્મને જાગૃત થઈ. એ આત્મને જાગૃત થઈ એટલે પરમધામનું પૂર્ણ જ્ઞાન, એ વ્રજ અને રાસની વાતો પણ એ પણ એને નજરો નજર દેખાયા. રાસની અંદર બ્રહ્માંડ, રાજના બ્રહ્માંડની અંદર જે કઈ લીલા થઈ એમને પણ નજરો નજર દેખ્યા. અને પરમધામના 25 પક્ષનું સુખ પણ એને આત્મને મળી ગયું. ખરેખર ત્યારે સુંદર સાહેબજી
આગળ આપણે देखીએ તો જે રામભાઈ કંસારા એ પણ માયાની અંદર લાગેલા હતા, એ પણ संवत 1722 दीप पधारे श्री राज, दोए बरस तहाँ रहे सब पूरे भ्रम सृष्टि मन का। 2 વર્ષ સુધી એ જે રામભાઈ કંસારાએ એમને ત્યાં શ્રીજીની સેવા કરી, સુંદર સાથની સેવા કરી અને એની આત્મને જાગૃત કરી। કહેવાનો આશય એટલો જ છે કે પ્રસાદજી પોતાની આત્મને જાગૃત કરવા માટે આપણે આવી તન મન ધન અને બધી કુરબાની તો કરવી જ પડે, તો જ આપણી આત્મ કંઈક જાગૃત થાય। અને જગાવવાનો કોલ કરવા માટે તો પ્યારે સુંદરસાજી એ તો 12 મોમીનોનો આપણે દ્રષ્ટાંત લઈએ, વિશેષ વાત નહીં કરીએ, પણ 12 મોમીનો ઔરંગઝેબના દરબારની અંદર ગઈ। ઔરંગઝેબ કેટલો કેર વર્તાવતો હતો કે રોજની 1.25 મણ જરૂર તોલે ને એટલો હિન્દુઓને મારીને મુસલમાન બનાવતો હતો। એવો પ્યારે સુંદરસાજી કેર હતો। તેમ છતાં પરમધામની આત્માઓ બ્રહ્મસૃષ્ટિ સિરદાર શીખ્યો પ્યારે સુંદરસાજીના દરબારની અંદર પહોંચી અને એ ઔરંગઝેબની આત્મ એક પોતાની એક સંગીબાઈ કહેવાય, એ શાકુમારની આત્મ હતી। એને જાગૃત કરવા માટે એમને પોતાના પ્રાણની પણ પરવા કરી નથી અને ત્યારે સુંદરસાજી આ સંસારનું બધું દુઃખ પણ વેઠી એ આત્મને જાગૃત કરી। એ જગાવવાનો કોલ આપણે કરવો હોય તો એવી કુરબાની આપણે પણ કરવી જ પડે યથાશક્તિ। ખરેખર ત્યારે સુંદરસાજી એમને જે કરી એટલું આપણાથી થાય એવું નથી, પણ આપણો ભાવ, આપણી સમજ, આપણું લક્ષ્ય એ પ્રમાણે હોય તો ખરેખર આપણે જાગવો અને જગાવવાનો કોલ આપણે પૂરો કરી દેવાય। કે આ જાગણીના પ્રમાણની અંદર આપણું લક્ષ્ય એ જ પ્રમાણે હોવું જોઈએ। ખરેખર ત્યારે સુંદરસાજી આ પ્રણામી આલમની અંદર પૂજ્ય મહારાજ શ્રી દાહોદ જિલ્લા, વડોદરા જિલ્લા એ બધા જિલ્લાની અંદર લગભગ 70-75 દિવસથી લગાતાર સુંદર સાતની જાગરણની સેવા કરે છે। આપણા વિસ્તારની અંદર આપણે ભાગ્યશાળી આત્માઓ કહેવાય। ખરેખર આપણને પણ એમનો સમય, અણમોલ સમય આપીને આપણી વચ્ચે આપણી આત્મને જાગૃત કરવા માટે પધાર્યા છે। એક એક શબ્દ આપણે આત્મસાત કરીએ અને આત્મસાત કર્યા પછી એ આપણે રહેણીની અંદર લાવીએ તો ખરેખર આ કાર્યક્રમનો પૂર્ણ લાભ આપણે લઈ શકીએ। બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય, શ્રી સદગુરુ મહારાજ પ્યારે સુંદર। हेलो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रथम गुरु चरण को धन्य मेरे जीव के जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर हो आत्मा पलना वालो निर्गुण नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। श्री मोहम्मद मंदसूर से आगे औरंगाबाद की बात तो बड़ी गुजरात, बात बड़ी गुजरात राणा के लक्ष्य आप धामधनी श्री लक्ष्मी महाराज पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप आज बाई के हृदय स्थल में विराजमान होकर के आज के प्रश्न को वर्णन करते हुए बता रहे हैं। कल आपने सुना कि दिल्ली के दरबार से चल करके
श्री जी साहब उदयपुर होते हुए मंदसौर पहुंचते हैं और मंदसौर के प्रसंग के अंदर हर सुंदर साथ को कठोर परीक्षा में तपा देते हैं। तट के अंदर तपे हुए सुंदर साथ अब उस लायक बन चुके हैं कि वो परम धाम के ज्ञान को ग्रहण कर सके, और इसीलिए उस ज्ञान की भट्टी में और उस तप की भट्टी में डालना पड़ता है। आप कहीं भी चले जाना, ऋषि परंपरा में आप देखना, एक उदाहरण बताता हूं आपको। ऋषि धौम्य के एक शिष्य था, उसका नाम था उपमन्यु। एक का नाम अभिमन्यु होता है और एक का नाम होता है उपमन्यु। उपमन्यु गुरुकुल में ज्ञान लेने गया और ज्ञान लेने जब पधारा तो उपमन्यु को तकरीबन 10 गायें दी और ऋषि धौम्य ने कहा कि हे उपमन्यु, जब तक ये गायें सो ना हो जाए तब तक तू जंगल से लौट के मत आ। उपमन्यु जंगल जाता है। जंगल जाने के बाद पहले उपमन्यु भिक्षा मांग करके खाता है और गायों को चराता है। चराने के बाद वो गाय धीरे धीरे बढ़ने लगी और उसी उपमन्यु को जब ऋषि ने देखा कि ये भिक्षा मांग करके खाता है तो ऋषि ने उस परीक्षा को और कठोर कर दिया और कहने लगे कि हे उपमन्यु, बेटा अब आपको भिक्षा नहीं मांगनी, भिक्षा भी बंद करवा दी। और भिक्षा बंद करने के बाद उपमन्यु के पास एक और ऑप्शन रह गया था और वो ऑप्शन था गायों का दूध पीना। एक समय आया, गुरु ने फिर आकर के देखा कि उपमन्यु दूध पीता है तो उन्होंने कहा कि हे उपमन्यु, अब आगे से तू दूध नहीं पिएगा, क्योंकि गायों का दूध केवल बछड़ों को पीने का अधिकार है, किसी इंसान को नहीं। उपमन्यु ने वो दूध पीना बंद कर दिया। उपमन्यु उनके जो बच्चे के दूध पीने के बाद जो झाग गिरती थी उसको चाट करके भोजन ग्रहण करता। एक समय वो भी आया और उस समय के बाद उपमन्यु को कहा कि बेटा, ये झाग भी आपको चाटने का अधिकार नहीं। अब कल्पना कीजिए, ऐसे गुरु के सानिध्य में कितने लोग टिकेंगे? बहुत कम व्यक्ति टिकेंगे। जब परीक्षा पर परीक्षा और कठोरता बढ़ा दी जाए तो व्यक्ति घबरा करके भाग जाएगा। और उपमन्यु को अंतिम परीक्षा ली जाती है। उपमन्यु को कहा जाता है कि आज से तुम दूध नहीं पियोगे, झाग नहीं चाटोगे, भिक्षा नहीं मांगोगे, तो वो बंदा खाएगा क्या? और जंगल में कंदमूल मिलने लगे, उस कंदमूल को खाने लगा। और एक ऐसा समय आया कि जंगल में आग लगी। आग लगी तो जंगल में कंदमूल नाम की वस्तु भी समाप्त हो गई और उपमन्यु अब कुछ खाने लायक बचा। उसमें भूल से एक आग का पत्ता मिला और उस आग के पत्ते को खाने के बाद उपमन्यु की नजर चली गई। और जब उपमन्यु की नजर चली गई, वो अंधा हुआ, कुआं में गिरा। और कुआं में गिरने के बाद उपमन्यु कह रहा है कि कोई मुझे निकालो, मैं बाहर आना चाहता हूं। उस समय वहां उनके गुरु और उनके आश्रम के बच्चे आते हैं और जब उनको निकाला बाहर तो उपमन्यु अंधा था। उपमन्यु को कुछ नहीं दिख रहा था। उपमन्यु अंधा हो गया, तब भी अभी भी गुरु के प्रति वो यही सोच रहा था कि अगली मेरी परीक्षा कौन सी हो, अगली में कौन सी परीक्षा में पास हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। सोचने वाला सवाल है कि यदि दुनिया का एक गुरु अपने शिष्य को इतने कठोर तप में डालता है और कठोर तप में डालने के बाद उस शिष्य को परिपक्व करके उसको ज्ञान देता है, ज्ञान देने के लिए उसको 100 गायें नहीं, उसको एक भट्टी में डाला गया, उसको पकाया गया और पकाने के बाद उसको ज्ञान दिया गया। यही ऋषि परंपरा थी। यही उस गुरुकुल की परंपरा में विद्यार्थी पढ़ते थे, ज्ञान लेते थे। लेकिन वर्तमान टाइम में ना ज्ञानी की कदर रही और ना ज्ञान लेने वाले कदर करने वाले रहे। बोलो श्री प्राणनाथ। भाई हल्का आवाज बढ़ाना, थोड़ा सा गला भी खींच रहा है। तो धीरे धीरे उस समय के अनुसार आप देखिए, कल के दिन आपने श्रवण किया,
5,000 की जमात दर दर भिक्षा मांगती है। आप जानते हो 99 जहाज के मालिक स्वयं सेठ लक्ष्मण दास जी, जिनके आगे पीछे नौकर हुआ करते हैं। उसके बाद साथ में चिंतामणि जी महाराज है, जिनके पैर दबाने से लेकर के आसन बिछाने तक लेकर के हर कार्य को करने के लिए स्वयं 1000 शिष्य लेकर के चलने वाले चिंतामणि जी महाराज हैं। श्याम भाई और भीम भाई वेदांत के महाज्ञानी हैं। एक तरफ देखो तो गोवर्धन भाई जो अपने धन दौलत को लेकर के श्री जी साहब के चरणों में पधारे, और साथ में वो कई सुंदर साथ हैं जो महाज्ञानी है, महातपस्वी है। ऐसे तपस्वियों के साथ रहते रहते, ऐसे महाज्ञानियों के साथ रहते रहते आप कल्पना कीजिए कि उस समय का कैसा कंडीशन होगा, कैसी परिस्थिति होगी कि हर सुंदर साथ। आज सेठ लक्ष्मण दास ये नहीं सोच रहा कि मेरे आगे पीछे नौकर घूमते थे। आज 1000 शिष्यों का मालिक, 1000 शिष्यों का गुरु चिंतामणि जी महाराज ये नहीं सोच रहा कि मैं किसी का गुरु हूँ। एक भावना से आज आकर के सारा सुंदर साथ मिल करके भिक्षा के पात्र को ग्रहण करता है। उन सबको पता है कि आज हम किसी के गुरु नहीं, आज हम कोई धनी व्यक्ति नहीं, आज हम किसी के सेठ नहीं, आज हम एक आत्मा है। आत्मा सारे संसार के अंदर आत्मा सिद्धांत की बात कही, और आत्मा सिद्धांत के अनुसार वो सारे सुंदर साथ चले। मैंने पहले एक प्रसंग में कहा था कि चंदन को जितना घिसा जाए उतना चंदन सुगंधित ज्यादा हो जाता है। सोना को जितना तपाया जाए सोना उतना ही पवित्र होता चला जाता है और इतना ही उज्जवल होता है। और गन्ने को जितना मशीन में पिसा जाए उतना ही वो मीठे रस को देता है। इसीलिए करे प्राणांतेपि प्रकृति जायते, कि यदि शरीर को इसी तरह तपाया गया तो ये शरीर भी महान बनता है, और अंदर बैठे जीव को महानता प्राप्त होती है और ये विकारों को छोड़ देता है। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, कठोर तप में तपाने का इरादा केवल इतना था कि क्या ब्रह्म सृष्टि इस दुनिया के अंदर किसी को कोई उदाहरण दे पाएगी? क्या जिनके बारे में हमारी वाणी कह रही कि ब्रह्म सृष्टि की चरण रस खोज सके? अरे जिनके सानिध्य में आने के बाद जीवों को अखंड मुक्ति मिलने वाली है, क्या वो ब्रह्म सृष्टि तपस्वी है या नहीं? इसीलिए ऐसी ब्रह्म सृष्टियों के बारे में कहा गया कि यदि ऐसी ब्रह्म सृष्टि का सानिध्य प्राप्त हो जाए तो समझ लेना कि इससे बढ़कर कोई हमारा सौभाग्य नहीं हो। ये हमारा अहोभाग्य है कि हम ऐसे ब्रह्म सृष्टियों के सानिध्य को ग्रहण कर पाए, उनको सुन पाए, उनको श्रवण कर पाए। तो इसीलिए ये वाणी हमें समझाना चाहती है कि श्री जी साहब मंदसौर से चल करके उज्जैन आते। उज्जैन में यहाँ पर भी भिक्षा का प्रसंग चलता है, यही उज्जैन छिपरा वाला, और यहाँ से चले जाते हैं महाराष्ट्र की तरफ। और अब महाराष्ट्र की तरफ कैसे जाते हैं? और आए रामपुरे के ठोर। यहाँ से चल करके कहाँ है? दुधलाई डेरा किया, दुधलाई में एक जगह डेरा किया, किया तो जाने जोर, और वहां पर भी माया का बंधन। हर व्यक्ति समाज के अंदर आगे बढ़ते व्यक्ति को रोकना चाहता है। 100 लोग में से यदि 50 रोकना चाहेंगे तो 50 उसका साथ देंगे। और इसलिए दज्जाल यानी कि धर्म की राह में बाधक बनने वाले लोगों को दज्जाल की बात कही कि ये ऐसे लोग होंगे कि हर समय धर्म के बीच में आकर के खलल डालेंगे। तब यहाँ से मुकुंदास जी को कहा कि हे मुकुंदास जी, आपकी जागने का कार्य भी बाकी है। आपने लादू मसानी को जगाया और उदयपुर में आपने जागने का कार्य तो किया है, लेकिन अभी राजस्थान के कार्य को आपको मैंने सौंपा था, अभी आपका काम बाकी है। आप जाओ और औरंगाबाद में जाकर के राजा भव सिंह से मुलाकात करो। और केशवदास और किनको भेजा? खिमाई भाई और वल्लभ, केशवदास, खिमाई भाई और वल्लभदास वगैरह सुंदर साथ को यहाँ से औरंगाबाद भेजा गया। भाव सिंह के उत्तर, भाव सिंह के यहाँ जब पधारे, राजा भाव सिंह औरंगजेब के शासन में आने वाला राजा है। क्यों यहाँ पर राजाओं को जागृत कर रहे हैं? क्योंकि श्री साहब को पता था औरंगजेब के रहते हुए हिंदुस्तान की सल्तनत
खतरे में। हिंदू समाज आज अपने अस्तित्व को खोता जा रहा था। हिंदू समाज की संस्कृति सभ्यता नाश होती जा रही थी और हिंदू समाज में कोई ऐसा वीर योद्धा जागृत नहीं हो रहा था जो इनके सामने लड़ सके, जो टिक पाए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। इसलिए श्री जी साहब के किरंतन पुकार उठते हैं, राजा ने मलोरे राणे राई तड़ो धर्म जाता रे कोई दौड़ो, जागो ने जोधारे उठ खड़े रहो, निधनी गोड़ी रे छोड़ो। पुकार उठती उनकी वाणी कि राजा ने मलोरे राणे राई तड़ो, ए राजाओ, ए राजस्थान और एमपी और हिंदुस्तान के राजाओं जागृत हो, बोले तुम्हारे लिए ज्ञान आया, तुम उस आलस्य की चद्दर को छोड़ो और निकलो बाहर और निकल करके बोले ज्ञान की रक्षा करो, धर्म की रक्षा करो, हिंदुत्व की रक्षा करो। यदि हिंदू समाज नहीं बचेगा तो तुम शासन किस पर करोगे? तुम्हारी संस्कृति सभ्यता सब नाश होता जा रहा है, तो भी आपको कोई परवाह नहीं। सभी राजा को संबोधित करते हैं, पर आलस्य और प्रमाद की घोर अय्यासी की जिंदगी में जीने वाले राजा स्वयं एक आलस्य की जिंदगी जीते रहे और कोई नहीं इस ब्रह्मवाणी की पुकार को नहीं सुना। श्री जी साहब के आह्वान केवल ब्रह्ममलाओं के लिए नहीं था, हिंदुस्तान के सारे समाज के लिए था, जो समाज एक अंधकार की नगरी में बैठा था, अंधविश्वास के अंदर पड़ा हुआ समाज था। उस समाज को जागृत करने के लिए वाणी पुकार उठती थी, उठो और जागो, धर्म रूपी तलवार को पकड़ो और धर्म के ज्ञान को लेकर के उनके सामने आप प्रश्न खड़े करके उनकी जबान को बंद करो। और कोई राजा नहीं खड़ा हुआ, तब राजा भाव सिंह का चुनाव किया और राजा भाव सिंह के लिए जागृति के लिए मुकुंदास जी और केशवदास, वल्लभ भाई, खिमाई भाई वगैरह सुंदर साथ को भेजा। भीम मांगे 200 रुपया और क्या मांगे? भीख मांगे 200 रुपये। विचार कीजिए, यही मुकुंदास जी, एक समय था साहब, मुकुंदास जी के जेब में 400-500 रुपए पड़े रहते थे। मखमली वस्त्रों को धारण करने वाला, सुंदर वस्त्रों को धारण करने वाला ये मुकुंदास कई रुपयों को लेकर के घूमने वाला। 400 रुपये यानी आज के समय की कल्पना मत कीजिए, उस समय की बात कर रहा हूं जिस समय 10 का और 5 के की कीमत बहुत ज्यादा थी। अरे उस समय कौड़ी चला करती थी और कौड़ी की कीमत भी कई गुना ज्यादा थी। उस समय की बात है, रुपया यानी 1000 के बराबर और 400 रुपया होना यानी तकरीबन 4 लाख के आसपास जो व्यक्ति अपनी जेब में लेकर के घूमता हो, वो मुकुंदास जी आज भिक्षा के पात्र को उठा करके राजा को प्रसाद देने के लिए स्वयं भिक्षा मांगता है। थैलियां रेशमी बनाए के और भिक्षा मांगी। भिक्षा मांगने के बाद उनको विचार आया कि मैं इस भिक्षा से राजा के लिए अच्छा थैली बनाऊं और मखमली वस्त्र लिया और उसकी थैली बना करके किया प्रसाद थैली करे तत्पर और प्रसाद थैली की तैयार करी और प्रसाद को तैयार करके प्रश्न भागवत के वेदांत के कितने लिखे? प्रश्न भागवत के 40 और वेदांत के प्रश्न 15 लिखे। ले डाले थैली में डाल करके मुकुंदास जी महंत रामदास रहे। और उस समय साहब एक और पंडित मिलता है, ये दज्जाल का रूप है। क्या नाम है उसका? महंत रामदास। कहने को तो ये ब्राह्मण है, कहने को ये व्यक्ति साधु है, लेकिन इसकी हरकत देखिए। तीन देखे बीच बाजार, अरे बाजार में देख लिया मुकुंदास जी को, जान गया कि यहाँ कोई नया पंडित आया है और राजा को भ्रमित करना चाहता था। पहुंचाया नाले पार, मारते मारते मुकुंदास जी, केशवदास जी, खिमाई भाई, वल्लभ भाई, 5 और सुंदर साथ को मारते मारते नाले पार कर उधर की चमड़ी इनकी और कहने लगा, एक दूसरी बार आना नहीं। बोले ये औरंगाबाद में मेरा शासन है और इस राजा को भ्रमित मत कर। सोचिए, ज्ञानी किसको बोलते हैं? एक अज्ञानी और ज्ञानी के बाद जब कबीर साहब कहते हैं, ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की, और गधे से गधा मिले तो करे लातम। ये वही बात है कि ज्ञानी मानस ज्ञान की बात करेगा और अज्ञानी क्या करेगा? एक ही बात, बस लड़ना, उसके अलावा कुछ जानेगा, केवल लड़ता रहेगा, बहस करता रहेगा और बहस करने के चक्कर में अपने धर्म और आत्मा को भी बेच देता है।
भूल जाता है कि वो धर्म के मार्ग पर चढ़ा है, भूल जाता है कि वो कहीं आत्मा के कल्याण के लिए आया है, लेकिन सिर कटवाने को तैयार हो जाता है और अपनी आत्मा के मार्ग को छोड़ देता है। रामदास पंडित भूल गया कि वो साधु है। साधु का तात्पर्य क्या होता है? साधु वो है जो सरल है, सिंपल है, जिसके अंदर दया और करुणा की भावना हो, जो किसी के ऊपर आडंबर का भेष ना फेंकता हो, उसको साधु कहते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके स पंडिता समदर्शिनी। कि पंडित कौन है? विद्या विनय से संपन्न, ज्ञान से परिपूर्ण, हाथी से लेकर कीड़ी से लेकर के बिल्ली से लेकर के गाय से लेकर के कुत्ते तक के हर पशु और प्राणी के अंदर जो व्यक्ति समान आत्मा के भावों के रूप में देखता हो, जो हर किसी को आत्मा मानता हो, हर किसी को चेतन मानता हो, वो एक ज्ञानी है। जो हर किसी को एक आत्मा के भाव से समझता हो, वो ज्ञानी है। पर आज रामदास पंडित ने महात्माओं के नाम को बदनाम कर रखा। आज रामदास पंडित ने उस नाम को कलंकित कर दिया था। और जब कोई साधु का नाम कलंकित होता है तो समाज के अंदर एक नहीं हजारों वर्षों से चली आ रही थी संस्कृति और सभ्यता का नाम समाप्त होता है। और इसी तरह ये रामदास पंडित ने कौरे ज्ञानी था, ज्ञान ज्ञान में नहीं था, अहंकार के अंदर एकदम मस्त रहने वाला ये पंडित व्यवहारिकता को भी नहीं जानता है कि किसे कैसे व्यवहारिकता करनी चाहिए। वर्तन व्यक्ति नहीं सीख पाता है। व्यवहारिकता क्या होती है? कि मानव जब दूसरे के साथ यथा योग्य व्यवहार करे, इंसानियत का मार्ग अपनाए, बात बात पर गर्म ना हो जाए, ये व्यवहारिकता है। पर व्यक्ति भूल जाता है अपनी व्यवहारिकता को, भूल जाता है अपने कर्म को और उल्टे मार्ग पर चढ़ जाता है। इसलिए रामदास पंडित ने अपने साधुपन को समाप्त कर दिया। पंडित की जगह से वो राक्षस बन गया और मारने लगा एक संत को जो सरल व्यक्ति है। इसलिए सारे संतों को यही कहा कि संत हो तो कैसा हो, जो कभी किसी चीज की कामना ना करे, जो किसी के लिए कटु भावना से ना देखे, वो संत है। लेकिन ये संत संत नहीं रहा, ये असंत हो गया। इसलिए ये रामदास का प्रसंग हर पंडितों के लिए कलंकित प्रसंग था। एक दोहरा देवी का। अब उस समय उन्होंने सोचा मुकुंदास जी ने कि क्या करूं मैं, कैसे पहुंचूं राजा भाव सिंह तक। एक दिन थैली में प्रसाद तैयार करके मुकुंदास जी कुल देवी के मंदिर में जाके बैठ गए। जाकर के जब उस सुबह राजा प्रणाम करने आया, नमन करने आया, राजा के हाथ में थैली पकड़ाई और थैली पकड़ाने के बाद कहने लगे कि हे राजन, ये आपके लिए मैं प्रसाद लिया हूँ। और प्रसाद दिया। प्रसाद दे करके वो यहाँ से थोड़े वापिस छिप गए। उस समय राजा महल में गया और जाकर के मुकुंदास जी को भी बुलावा भेजा कि जाओ उस मंदिर में बैठा हो महात्मा, उसको बुला करके लेकर के आओ। स्वयं राजा भाव सिंह से मुलाकात करी और मुलाकात करने के बाद क्या कहा, छोड़ दो मुकुंदास को। और उस समय उनके ठोर देव मुकुंदास जी को बातचीत हुई और बातचीत होने के बाद राजा भाव सिंह ने देखा कि क्या परम ज्ञान को लेकर के आए हो, तुम्हें ऐसे ज्ञान को लेकर के आने के लिए बहुत धन्यवाद दिया। और कहने लगे कि हे मरण रामदास, इनको जरा रहने की जगह दे दो। मुकुंदास निशा करी और मुकुंदास जी को पता चला कि मुकुंदास जी को कहा कि आप इनको रहने के लिए मुकुंदास जी की जगह बनाओ। रामदास जी की बातों को सुन करके मुकुंदास कहने लगे कि हे राजन, इसने तो मेरी इतनी सेवा कर दी है कि मैं किसी युग में भूलने वाला नहीं हूँ। दिखाई अपनी पीठ और शरीर को, बोले देखिए आपके गुरु ने और आपके कुल गुरु ने हमारी क्या सेवा की है। और उस घटना को देखने के बाद यहाँ के ये राजा इतने गर्म हुए कि गर्म होने के बाद इस राजा ने कहा कि ये तुम संत नहीं हो। और संत के नाम से उन्होंने इतने कटु शब्द कर दिए कि हे रामदास पंडित, तुम्हें पंडित जैसा बनना चाहिए था, और तुम पंडित के गुणों के लायक नहीं हो, तुम पंडित के लायक नहीं हो। तुम एक मानवीय से भी मानवता से गिर चुके हो। और पंडित को डांटा और डांटने के बाद
अब यहाँ पर एक प्रसंग बनता है और प्रसंग के अंदर कई पंडित थे। उन पंडितों के बीच में राजा भाव सिंह कहने लगा कि यदि आप किसी को कुछ पूछना और मुकुंदास के बारे में संशय हो तो पूछ लो। पंडितों ने 80 प्रश्न बनाए। कितने बनाए? 80 प्रश्न बनाए। मुकुंद ने 80 दिने और मुकुंदास जी ने 80 प्रश्नों का उस समय उत्तर दे दिया पंडितों का। दो उत्तर हमारे प्रश्न का। और मुकुंदास जी ने 23 प्रश्न लिखे और 23 प्रश्न लिखने के बाद क्या कहते हैं? उत्तर तो आवे नहीं। पंडित को उत्तर दिया और शर्त रखी कि जो व्यक्ति हारेगा वो जूते का हार पहन करके पूरी बाजार भ्रमण करेगा। बोलो श्री प्राणनाथ। शर्त रखी गई कि जूते का हार पहनेगा और बाजार में भ्रमण करेगा। इसलिए पंडितों ने सोचा 15 दिन हो गए। 15 दिनों में इन पंडितों को किसी को भी एक भी प्रश्न का उत्तर आया नहीं। रात्रि में पंडित क्या करते हैं? चलिए जो स्वामी जी यो कहीं कहा कहने लगे, अरे मुकुंदास जी, अरे आप एक संत आदमी हो, क्या आपके स्वामी जी, क्या आपके श्री प्राणनाथ जी यही चाहते हैं? तो हमारा क्या चारा? कहने लगे कि क्या आपके स्वामी यही चाहते कि हमारी रोजी रोटी समाप्त हो जाए? क्या आपके स्वामी यही चाहते कि हमारे बीवी बच्चे परिवार भूखा मरे? आपके स्वामी जी की यही इच्छा है? मुकुंदास जी कहने लगे, ना 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 ना, हमारे स्वामी की ऐसी कोई इच्छा नहीं। हमारे स्वामी तो हर किसी का कल्याण चाहते, हर आत्मा को जागृति चाहते। उनके दिल में किसी के प्रति कोई भावना नहीं। वो तो करुणा का सागर है, दया का सागर है। उस दया के सागर को किसी के प्रति क्या गिला शिकवा सकता है? इसलिए कहने लगे कि आपके स्वामी जी नहीं चाहते हैं तो हे मुकुंदास जी, आप हमारे इस रोजी रोटी को वापस दिलवा दो, वरना हमारे बच्चे और हमारी पत्नियां बोले भूखी मर जाएगी। बुलाओ श्री जी साहेब जी को। और उस समय रात्रि के समय में बात हुई और सुबह जाने के बाद उस समय वो राजा से जा करके कहने लगे, और राजन, इन पंडितों को ब्रह्म ज्ञान का उत्तर कभी नहीं आएगा, ये कभी किसी प्रश्न का जवाब नहीं दे पाएंगे। ये राजन, इनको माफ कर दो। और माफ करने के बाद जहां 20 रुपया दिया जा रहा था वहां हमको कितना दिया गया? 10 रुपया। और 10 रुपये की पगार रखी, 10 रुपया दिया गया कि अब तुम्हारी पगार 10 रुपये हो गई है। इधर श्री जी साहब को बुलावा भेजने के लिए इनको मुकुंदास जी को कहा कि जाओ और आप ले करके श्री जी साहब को आओ। बूंदी से एक हथेली ले जाने के लिए कहा और एक घोड़ा ले जाने के लिए कहा। यहाँ से श्री जी साहब को लेने के लिए चल पड़ते हैं स्वयं मुकुंदास जी और मंदसौर से होते हुए, उज्जैन से होते हुए ले करके आते हैं। भाव सिंह आए के लगा चरणों। और राजा भाव सिंह के दरबार में जब श्री जी साहब पधारे तो आकर के चरणों में गिर करके कहने लगे कि मेरा धन्य भाग है कि आप मेरे दरबार में पधारे, आप मेरे राज्य में पधारे। और राजा भाव सिंह बड़ा भाव वाला राजा था। नाम भी देखिए, भाव सिंह। राजा बड़ा भाव वाला था और भाव वाले होने के कारण से राजा भाव सिंह कहते कि मेरा अहोभाग्य है कि आप मेरे राज्य में आए हैं। लगा सेवा करने। राजा होने के बाद भी वो सेवा में लग गया और सेवा में लगने के बाद सेवा करता रहता है। उत्सव रसोई जब और उत्सव रसोई जो राजा भाव सिंह से हो सकता था वो सारे कार्यों को करने लगा। दो जगह हवेली अपनी, एक रहने के लिए हवेली दिया, राजमहल का एक हिस्सा दे दिया। ये मुसलमान 4 है। राजा भाव सिंह कहने लगे कि हे धामधनी, हे श्री जी साहब, आप कुरान भी पढ़ते हो, वेद भी पढ़ते हो, भागवत भी पढ़ते हो। आप यदि हमारे 4 मुसलमानों को जागृत कर दो तो मेरे चाकर ही तो। और मेरे चाकर है वो। जब श्री जी साहेब जी ने कहा तब श्री जी साहब क्या कहते, दे उन मुसलमानों को, हम उनको जागृत करेंगे, इनको हम समझावे और उनको समझाएंगे। वे कहे तुमको तहकीक और उनको सारी तहकीक यानी में वो ज्ञान सुनाएंगे। इन समय अव्वल खान। अब देखिए 4 मुसलमान है। कौन है? राजा भाव सिंह के मंत्री है। राजा भाव सिंह का शासन औरंगजेब के शासन के अंदर आता था। इसीलिए आप देखना, क्योंकि राजा भाव सिंह के चारों 4 मंत्री क्या है? मुसलमान है। कोई भी एक भी हिंदू मंत्री नहीं है।
क्योंकि उस राज्य को औरंगजेब बादशाह ने जीत रखा था। इसलिए राजा हिंदू होता था लेकिन मंत्री मुसलमान होते थे। क्यों होते थे? क्योंकि उसके कारण से औरंगजेब बादशाह हर राज्य पर शासन कर सके, हर राज्य पर अपना अधिकार जमा सके, इसलिए लोग अपने लगा करके रखते थे। इसलिए अव्वल खान नामक एक सुंदर साथ बन चुका था। ये उदयपुर के अंदर श्री साहब का दर्शन कर चुका होता है और अव्वल खान ने यहाँ पर आकर के श्री साहब का दर्शन किया। ये पहला मंत्री है मोहन खान और साथ में जहान मोहम्मद और मिहिर खान, ये दो अलग अलग हैं, और फतेह मोहम्मद, ये चार मुसलमान, चारों मुसलमान यहाँ पर प्रवचन सुनने आते हैं। और एक दिन यहाँ पर एक प्रश्न घटित होता है। लाल दास और उत्तम दास जी दोनों मिल करके जब श्री जी साहब के सामने वाणी के अंदर जो राज्य के स्वरूप का वर्णन आया, उस वर्णन को करने लगे कि खुदा कैसे दिखते हैं, तो बोले नूरी पाग है जिसकी सिंदूरिया रंग की पाग है और आसमानी रंग की बिछोरी श्वेत रंग का जामा है, केसरिया रंग की इजार है, गले में 5 हार, कानों में कुंडल और हाथ में कंगन और चरणों में झांझरी, घुघरी और कामी करला के अति सुंदर आभूषण है। ये बात जब करने लगे, ये बात सुन करके जो जहान मोहम्मद था पूरे का पूरा यहाँ का उस्ताद था। उस्ताद का मतलब क्या होता है कि वो एक ऐसा ज्ञानी था कि जिस ज्ञानी को सुन करके पूरा औरंगाबाद उनके नीचे पढ़ाई करने आता था। इसीलिए सबका गुरु होने की वजह से वो सबको ज्ञान का दाता था। अब जहान मोहम्मद को बहुत गुस्सा चढ़ा और वो कहने लगे कि खुदा की गवाही खुदा ही देवे, खुदा ही करे बयान कि हे लालदास जी और उत्तम दास जी, बोले दुनिया का नापाक इंसान कभी भी परमात्मा के स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि कुरान में ये लिखा है कि कौन इसका हकदार होगा। जैसे आप महेश्वर तंत्र के पहले पृष्ठ में देखेंगे, वहां लिखा है कि बोले ब्रह्म ज्ञान को कौन सुन पाएगा, तो बोले जब तक उसकी अमीनाएं, जब तक इस दुनिया में उसकी ब्रह्म आत्माएं नहीं आ जाए तब तक बोले उस ब्रह्म ज्ञान को देने का कोई अधिकारी नहीं हो। कह रहे कि 1000 गायों को मारने के बाद जो पाप एक हत्यारे को लगता है, इसी तरह बोले ब्रह्म ज्ञान को देने वाले को भी क्या लगेगा, उतना ही पाप लगेगा। जो अपने गुरु की हत्या करता हो, अपने गुरु की निंदा करता हो, ऐसे हत्या का पाप जैसे शिष्य को लगता है, इसी तरह बोले इस ब्रह्म ज्ञान को सुनाने वाले को वो पाप लगेगा। और इसी तरह कुरान में लिखा था कि जब तक खुदा इस दुनिया में नहीं आ जाए तब तक बोले खुदा के स्वरूप का वर्णन करने का किसी को अधिकार नहीं है। इसलिए आज तक खुदा के स्वरूप का वर्णन किसी ने नहीं किया था, इसलिए सब लोग खुदा के स्वरूप से डरते थे और कोई खुदा का वर्णन नहीं कर पाया। जहां मोहम्मद गुस्सा हुआ और गुस्सा होने के बाद कहने लगा कि मुझे नहीं सुनना तुम्हारे ज्ञान को, छोड़ करके जहान मोहम्मद घर चला गया। लालदास जी और उत्तम दास जी अर्जी करते हैं कि हे धामधनी, क्या हम उनको बुला करके लेकर के आए? श्री जी साहब कहने लगे पक्की ब्रह्म सृष्टि आज गुस्सा हुई लेकिन कभी छोड़ करके जाने वाली नहीं है, इसलिए उस पक्की ब्रह्म सृष्टि को बोले उसके अंदर, उसके विधि के अंदर ज्ञान का दीपक जला है और एक दिन लौट करके आएगा। जहान मोहम्मद गया, 2 दिन के बाद फिर से आता है और जब 2 दिन के बाद आया तब श्री प्राणनाथ दर्शन देखिए। तो जहान मोहम्मद को आने के बाद यहाँ पर एक प्रसंग आता है, मुर्दे क्यों कर उठेंगे। जहान मोहम्मद कहने लगे कि हे श्री जी साहब, हे धाम के धनी, ये बताओ कि कयामत का समय होगा और कयामत के समय में मुर्दे के उठने का वर्णन लिखा है। इसलिए आप देखना हिंदू समाज के अंदर जलाने की प्रक्रिया है तो मुसलमान समाज के अंदर गाड़ने की प्रक्रिया है। हर व्यक्ति गाड़ता, उनको पता है कि खुदा इस दुनिया के अंदर आएगा और आने के बाद बोले जब वो आएगा तो सारे मुर्दे उठ करके खड़े हो जाएंगे। इसलिए सारे मुर्दों को उठने की राह कौन देख रहे हैं? मुसलमान। कयामत का टाइम होगा और मुर्दे जागृत होंगे, ऐसा कुरान के अंदर लिखा था। इसलिए मुर्दों को जागृत होने की राह देख रहे मुसलमान।
इसलिए हर व्यक्ति उस मुर्दे को ले जाकर के गाड़ देता है, मरे हुए इंसान को गाड़ता है, और गाड़ता गाड़ता एक ऐसा टाइम आता है शायद वो मुर्दे धीरे धीरे खाक बन जाते हैं, उनकी हड्डियां बचती है, बाकी कुछ बचता नहीं है। कल्पना कीजिए, एक साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया वर्तमान टाइम में, और साइंटिस्ट कहता है कि एक दिन मानव वापस जिंदा हो जाएगा। इसीलिए आज एक नई प्रक्रिया निकली, जैसे मुसलमान मुर्दों को गाड़ते हैं, इसी तरह ये क्या करते हैं, ये अपने शरीर को जिंदा रखने मतलब जिंदा करने के लिए एक केमिकल के अंदर डालते हैं, और उस शरीर को उल्टा लटका देते हैं, और उल्टा लटकाने के बाद उन लोगों को ऐसा लगता है कि एक दिन ये जागृत हो जाएगा, पर कहां से जागृत? क्योंकि जो मर गया है वो कभी वापस जागृत होने वाला नहीं। एक शरीर को रखने की 2 करोड़ रुपया कीमत लगती है, कोई भी व्यक्ति रख सकता है। उन साइंटिस्टों का ऐसा मानना है कि एक दिन व्यक्ति वापस जिंदा होगा, इसलिए केमिकल में जैसा का तैसा इंसान को ले जाकर के जमा देते हैं, ताकि कोई व्यक्ति मरेगा नहीं और वापस जिंदा होगा, ऐसा मानना है। लेकिन अब तक 50 वर्ष हो गए। कितने वर्ष हो गए? जो साइंटिस्ट ने ये खोज की थी कि जिंदा होंगे, उसने अपने शरीर को सबसे पहले जमा किया, और 50 वर्ष हो गए, अब तक कोई जिंदा हुआ नहीं। किसी को ये नहीं पता कि उस समय वो साइंटिस्ट ये नहीं मानते थे कि दुनिया के अंदर जो आत्मा तत्व है उसके निकलने के बाद शरीर भले स्वस्थ जैसा दिखता हो, लेकिन वो वापस जिंदा होने वाला नहीं है। राजा भाव सिंह अपने इन यारों के सामने ये मुर्दों का प्रसंग आया। अब सोचिए कि कौन से मुर्दे? तो बोले एक मुर्दे वहां बैठे, कहां पर? मूल मिला रहे, बोलो श्री प्रहलाद। उनका वर्णन किया कि कहा इस पर्वत से लेकर के, बोले पहले दिन ब्रज में आए तो भी व्यक्ति सो रहा था, रास में आए तो भी सो रहा है, तीसरे दिन मगध का आया, चौथा दिन देवचंद्र जी गया, 5वां दिन हक्की स्वरूप श्री प्राणनाथ जी गया, 6वां दिन सुंदर 7 का आया। ये 6 दिन गुजर जाएंगे और 7वां दिन आएगा, और 7वें दिन के अंदर 8 भीष खड़ी होंगे, यानी कि मानव रूपी मुर्दे के बीच में, यानी अंदर बैठा जीव जब तक ज्ञान को धारण नहीं करेगा तब तक वो क्या कहलाएगा? मुर्दा समान। शरीर क्या है? तो बोले शरीर उसका कब्र है, और उस कब्र पे शरीर के अंदर मुर्दा समान जीव बैठा है। तो जीव जब 8 भीष्ट में अखंड होगा तो ये मुर्दे कहाँ खड़े होंगे? योग माया के ब्रह्मांड में। ब्रह्म सृष्टि तब कहाँ जाएगी? तो बोले परम धाम में, और योग कर मुर्दे होंगे खड़े। इस तरह बोले मुर्दे का खड़े होने का प्रसंग लिखा। और आज व्यक्ति ये सोचता है कि संसार का तत्व खड़े होंगे, संसार के शरीर खड़े होंगे, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। व्यक्ति की ये एक गलत विचारधारा है कि दुनिया के शरीर खड़े होंगे। मानव जो अज्ञानता की घोर निद्रा में सो रहा है, जब मानव जागृत होता है, कैसा जागृत? ज्ञान लेने वाला, या जागृत का मतलब बहुत सारा होता है। अंधविश्वास से जागृत होना, आडंबर से बाहर निकलना, रौंग ढकोसलेबाजी से बाहर निकलना, और ज्ञान के सहारे आना। पर ज्ञान में भी परमात्मा की पहचान करके आत्मा के मार्ग पर चढ़ना, आत्मा के मार्ग पर चलना, ये एक सच्चा ज्ञान है। इसी को मुर्दे को जागृत होने लिखा है। पर जो व्यक्ति आत्मा के घर को नहीं जानता है, जो व्यक्ति आत्मा की पहचान नहीं कर पाता है, वो व्यक्ति कभी भी उसके घर तक नहीं जाएगा। मैंने कई बार बोला, पिछले दिनों में भी मैंने बोला था कि केवल ठिकाना तो 4 घर भगवानों का है, बाकी किसी भगवानों का आता पता भी उनके तो ठिकाने का नहीं पता है। जिसका खुद का घर नहीं तो तुम्हें कहाँ रखेंगे सर? बोलो श्री प्राणनाथ। आपने सुना ना आगे आगे गए प्रसंगों में भागवतकार कह रहा है कि कहाँ बैठा परमात्मा? बोले झाड़ के ऊपर। अब बताओ कि भागवत के रचयिता को नहीं पता है कि परमात्मा कहाँ बैठा है। जब वो ऐसा बोल सकता है तो बाकी शास्त्रों वालों को क्या पता? आदों को तो यही नहीं पता हमारे भगवान रहते कहाँ हैं। बस इतना पता है कि मंदिर है तो हम जानते हैं, और दुनिया के अंदर कितने भगवान निकले तो उसका आता पता नहीं है। और लोग अनेक भगवानों को लेकर के दुनिया में चलते हैं। जो देवी नहीं उसको देवी मानते हैं, और इस आधार पर
यहाँ पर जहान मोहम्मद जागृत हो जाते हैं। जहान मोहम्मद के जागृत होने के बाद एक दिन फतेह मोहम्मद कहता है, अरे तू जागृत हो गया तो मुझे अपने उस खुदा की पहचान करवा जिनके चरण में जाता है। फतेह मोहम्मद 40 प्रश्न पूछते कुरान के, और जब श्रीजी साहब के चरणों में आकर के जहान मोहम्मद कहते हैं कि हे श्रीजी साहब, क्या इन 40 प्रश्नों का उत्तर आप देंगे? तो श्रीजी साहब कहते कि जिसके पास ब्रह्म ज्ञान हो उसको स्वयं उत्तर देना होगा, मैं उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दूंगा। हे जहान मोहम्मद, तुम ब्रह्म सृष्टि हो, परम धाम की रूह हो, और परम धाम की रूह को किसी और के सहारे की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जहान मोहम्मद को कहते हैं कि तुम खुद दे सकते हो, तो कहते हे मेरे खावन, हे मेरे नाथ, अब तक मुझे जागृत बुद्धि और निज बुद्धि नहीं मिली है। श्रीजी साहब जहान मोहम्मद के सिर पर हाथ रखते हैं। हाथ रखने के बाद उनको तातम देते हैं, और तातम देने के बाद कहते जा जहान मोहम्मद, दुनिया में तुझे कोई सवाल पूछेगा और तू उसका उत्तर झट से दे पाएगा। जहान मोहम्मद यहाँ से चला, और चले जाने के बाद फतेह मोहम्मद को उत्तर देता है, और फतेह मोहम्मद को उत्तर देने के बाद फतेह मोहम्मद को कहता है, मान फतेह मोहम्मद, ये मेरा आखिरी जमाने का खावंद है। मैं जिनकी चरण में गया हूँ कोई हिंदू साधु संत नहीं, और दुनिया का मालिक है, और उस दुनिया के मालिक के चरणों में मैं गया हूँ। जहान मोहम्मद की बात को सुनकर के फतेह मोहम्मद क्या कहता है? तब फतेह मोहम्मद फिर कहा, और उस समय फतेह मोहम्मद क्या बोलता है? बोलो बादशाह ना आवे बीच दिन, कहने लगा कि मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक बादशाह इस बात को स्वीकार ना कर ले। जब तक औरंगजेब बादशाह बोले इनके चरणों में ना आ जाए तब तक मैं नहीं मानूंगा। बोलो आगा हम क्यों करें? अरे बोले हमारा बादशाह आगे नहीं बढ़ेगा तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? भले लागे क्यों ईमान, हम पहले बादशाह के बिना आगे नहीं चलेंगे। तब जहान मोहम्मद ने कहा, जहान मोहम्मद उस समय क्या कहते हैं? तुम्हारा ईमान ऊपर सुल्तान। कहने लगे वो फतेह मोहम्मद, तुम खुदा को क्या, परमात्मा को क्या, तुम्हारा खुदा तो ये औरंगजेब है, तुम्हारा परमात्मा औरंगजेब है, तुम खुदा औरंगजेब को मान करके बैठे हो, तुम कभी भी आत्मा के मार्ग पर नहीं चलने वाले हो, तुम तुम्हारी रूह को जागृत नहीं करने वाले हो। तब फतेह मोहम्मद वगैरह मिल करके उन लोगों ने, फतेह मोहम्मद ने उन मुसलमानों को चढ़ाया और बोले ये हिंदू वैरागी कुरान पढ़ता है, और कुरान के माध्यम से अपने कई मुसलमानों को अपना अनुयायी बना लिया है, इसको बोले हम यहाँ से भगाएंगे। और जहान मोहम्मद और सुंदर साथ सभा में बैठे, अव्वल खां, मिनी खां, नूर मोहम्मद, सारे सुंदर साथ यहाँ पर सभा में बैठे हैं। और उस समय फतेह मोहम्मद अपने यारों को लेकर के आकर के सभा में दखलन डालने लगा कि हे साधु वैरागी, तुम कुरान को क्यों पढ़ते हो? तुम तो नापाक हो, काफर हो, और काफर को कुरान को पढ़ने का अधिकार नहीं है, मना करते हैं। उस समय पठान सारे खड़े हो जाते जो सुंदर साथ बने थे। जहान मोहम्मद, अव्वल खान, नूर मोहम्मद, ये खड़े होकर के कहने लगे, अरे तुम कौन होते हो जो हमारे हाजी के बीच में टांग अड़ाने वाले? गर्म हुए, और गर्म होने के बाद इनको भगाया, भागे यहीं से। और भागने के बाद एक दिन साहब यहाँ राजा भाव सिंह को विश्वास आ गया कि मेरे मंत्रिमंडल के सदस्य मान गए कि हमारे बुद्ध निष्कलंक को वो आखिरुल जमा इमाम मेहदी मानते हैं। और उस समय राजा भाव सिंह ने कहा कि हे धामधनी, मुझे परमात्मा का दर्शन करवा दो। साहब, जिसकी अवस्था कच्ची हो, जिसने कभी कुछ नहीं देखा हो, अचानक वो व्यक्ति कहता है कि मुझे दर्शन करवा दो। श्री जी साहब जान चुके थे कि राजा ने कभी भक्ति नहीं की, राजा ने कभी तप नहीं किया। वो राजा यदि अचानक दर्शन करने जाएगा तो ये राजा की दशा क्या होगी? भक्ति के तप में तपने की जरूरत थी, राजा भाव सिंह नहीं तपा। उनको तो लगा कि मुझे परमात्मा का दर्शन मिल जाए तो मैं भाग्य समझूंगा। और राजा भाव सिंह श्री जी साहब के चरणों में आकर के विनती करता है, मना करते हैं कि हे राजा भाव सिंह, तेरे मंत्रिमंडल के सदस्य जागृत हो गए, तू अब जाग। तो उस समय राजा भाव सिंह कहता है कि मैं लड़ने जाने को तैयार हूं, पर बोले युद्ध में मर गया तो? और युद्ध में मर गया तो बोले मैं परमात्मा को देखे बिना मर जाऊंगा।
इससे अच्छा कि एक बार आप मुझे परमात्मा का दर्शन करवा दो, फिर उसके बाद में युद्ध करने को जाने को तैयार हो। राजा भाव सिंह औरंगजेब के सामने लड़ने को तैयार हो गया, पर एक इच्छा रह गई कि मुझे दर्शन करना है। राजा भाव सिंह को शायद दर्शन करवाए। राजा भाव सिंह की रूह योग माया के ब्रह्मांड में उसकी आत्मा पहुंची, पर योग माया के आनंद को देख करके राजा भाव सिंह की आत्मा लौट के आना चाहती, वो आत्मा रुक गई, वहां नहीं आना चाहती है। राजा भाव सिंह की आत्मा ध्यान के अंदर इतनी लीन हो गई, डूब गई वो आत्मा लौट के आई नहीं। राजा भाव सिंह का देहांत हो गया, राजा भाव सिंह का शरीर छूट गया। फतेह मोहम्मद उसकी राह देख रहा था। सारे मंत्रिमंडल और सबको दबाया, और दबाने के बाद राजा भाव सिंह के राज शासन पर फतेह मोहम्मद ने अपना शासन जमाया और कह दिया कि पकड़ लो इन वैरागियों को। श्री जी साहब को पकड़ने के लिए पूरी फौज को लगा दिया। श्री जी साहब राजा भाव सिंह के अरे फतेह मोहम्मद के फड़िए में ही जाकर के बैठ गए। बोलो श्री प्राणनाथ। पूरे एरिया में घूमता रहा, पूरे औरंगाबाद में ढूंढा, लेकिन कहीं भी कोई वैरागी मिला, कोई सुंदर साथ नहीं मिला। एक सुंदर साथ पकड़े गए जिनका नाम है भवानी भट्ट। भवानी भट्ट पकड़े गए, लेकिन भवानी भट्ट वहां से छूट करके चले जाते हैं। और उस समय राजा फतेह मोहम्मद के फड़िए में श्री जी साहब बैठे थे। वहां जहान मोहम्मद एक किसी काम की वजह से आए थे। पता लगा कि श्री जी साहब वही गढ़ में बैठे, जो ढूंढने निकला पकड़ने निकला पूरे राज्य में उसी के फड़िए में बैठे। वो कहते हैं ना कि सब दूसरी जगह ढूंढने जाते, अपने में कोई ढूंढता, और फतेह मोहम्मद ने अपने फड़िए में ढूंढा नहीं, इसलिए कुछ नहीं मिला। और वहां पर श्री साहब को जहान मोहम्मद कहते कि हे धाम के धनी मेरे खावन, आप चले जाओ, ये फतेह मोहम्मद राक्षस प्रवृत्ति का बन गया है, ये अब मुसलमान की परिस्थिति से बिगड़ गया है, वो किसी की बात को सुनने वाला नहीं है। तब यहाँ से रातों रात निकलते हैं, और यहाँ से निकल करके कहाँ चले जाते हैं? आकोट। और आकोट जाते जाते बहुत सारे सुंदर साथ का दिल डगमगाने लगा। बोलो श्री प्राणनाथ। सोचिए 3000 जीव सृष्टि, 1500 ईश्वरी सृष्टि और 500 केवल ब्रह्म सृष्टि। 3000 जीवों में से किसी का तो मन डगमगाएगा कि नहीं डगमगाएगा? किसी का तो डगमगाएगा। इसलिए 5000 की जमात में से कुछ लोगों का मन डगमगाएगा। अरे हम जिनके चरणों में रह रहे हैं, वो स्वयं परमात्मा स्वरूप है, और उनके चरणों में रह करके हमें इतना कष्ट। इसलिए सब लोगों ने विचार किया कि हम क्या करें। श्री जी साहब सबकी अवस्था को देख करके जान गए, और जानने के बाद समझ गए, और समझने के बाद कहने लगे कि इनको वापस जागृत करना है। उस समय शुक्राना का एक प्रसंग आता है, और शुक्राना के प्रसंग के अंदर श्री साहब कहने लगते कि हो प्यारे सुंदर साथ जी, ये धरती है और ये प्रकृति है। प्रकृति के अंदर आने वाले हर मानव को प्रकृति के नियमों का पालन करना होगा। कोई प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता है। इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि मैं संसार के नियमों का उल्लंघन करूं। तुम्हें भी संसार के नियमों का उल्लंघन नहीं करना है। और उस समय समझाते हैं कि तुम किसके ज्ञान को जानते हो? अरे जो अक्षर को पता नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश को पता नहीं। इस सृष्टि के अंदर जब ब्रह्मा विष्णु महेश सबसे पहले प्रकट हुए, आदि नारायण से प्रकट होने के बाद ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रकट करने वाले स्वयं आदि नारायण को सामने खड़े होकर के ब्रह्मा विष्णु और महेश यानी शंकर भगवान और विष्णु जी और ब्रह्मा जी तीनों मिलकर के पूछते कि हे देव, इस संसार में बोले हम कहां से आए? क्या सवाल किया? इस संसार में हम कहां से आए? तब उस समय उनको उत्तर में कहते हैं कि ये तो मुझे भी नहीं पता कि मैं कहां से आया। मैं तो अकेला था, इसलिए मैंने कल्पना की, और कल्पना में इतना मैंने पाया कि एको हम भविष्य में अकेला हो अनेक हो जाओ। इसलिए मैंने संकल्प किया, और संकल्प के माध्यम से तुम बने और ये सब मानव बने, और मैंने मानव सृष्टि का सृजन किया। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बोले संसार में सब जगह खोजने गए, और सब जगह खोजने के बाद भी इनको कुछ हाथ में आया नहीं। और जब खुद हाथ में कुछ नहीं आया, तब ये क्या कहते हैं? अहम ब्रह्मा अहम विष्णु शिवोहम इति मोहिता ना जाने वयम धातु परम वस्तु सनातनम।
कहने लगे कि हम ब्रह्मा हम विष्णु शिवो हम इति मोहिता ना जाने वयम वस्तु परम वस्तु सनातनम, कि हम नहीं जानते उस परम वस्तु सनातन परमात्मा को। ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे बोले हे सुंदर साज, ब्रह्मा जैसे विष्णु जैसे महाज्ञानी महातपस्वी महायोगी लोग जो बोले हिमालय में बैठने वाले भगवान शिव, उनको नहीं पता कि हम परमात्मा को नहीं जानते। तो आप कल्पना कीजिए कि आपको तो घर बैठे बैठे और आपको सरलता से वो परमात्मा मिले। क्या आप में से किसी सुंदर साहब को बोले हिमालय की बर्फीली गुफा में बैठने की जरूरत पड़ी? क्या भूखे मरने की जरूरत पड़ी? 8 महीने आपने भिक्षा क्या मांग लिया, आपका तो ईमान डगमगा गया। उस समय कहते हैं कि हे प्यारे सुंदर साहब जी, अक्सर ब्रह्म को जिसके बारे में बताना, ऋषि मुनि जिसके बारे में राह देख रहे हो, और लक्ष्मी जैसी लक्ष्मी जानने के लिए 7 कल्पन तब कर बैठती हैं, तो भी बोले उस परमात्मा को जान नहीं पाती। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, आपका सौभाग्य जागृत हुआ और आपको ये सौभाग्य मिला प्यारे सुंदर साहब जी कि आपको ये ब्रह्मवाणी मिली। और उस समय ब्रह्मवाणी के प्रसंग में क्या प्रसंग आता है? तुमको मैं गुलजना, एक प्रसंग आता है सुंदर साथ को जागृत करने का, और जागृत करने के प्रसंग में क्या है? दही में कुलजम तुमको। कुरान के अंदर एक प्रसंग लिखा, उस प्रसंग में लिखा है कि फेरून और हारून की 2 फौजें होंगी, दोनों लड़ रही होगी, और दोनों फौजों के लड़ने के बाद उस समय हारून का जो गुरु होगा, हारून का जो मालिक होगा, जिसका नाम क्या? मूसा पैगंबर। ये मूसा पैगंबर बोले एक जादुई छड़ी के माध्यम से एक नदी के तरफ हारून की फौज भाग रही होगी, और हारून की फौज के भागते भागते उस हारून की फौज को बचाने के लिए मूसा पैगंबर एक जादुई छड़ी को नदी के ऊपर फेंकेंगे, और जादुई छड़ी फेंकने के बाद उस छड़ी का पुल बन जाएगा, और उस समय हारून की फौज पार हो जाएगी। और जब हारून की फौज पार हो जाएगी, जैसे ही फेरून की फौज वहां प्रवेश करेगी, उस समय मूसा पैगंबर अपनी छड़ी को हटा लेंगे, और जब मूसा पैगंबर अपनी छड़ी को हटाएंगे, उस समय पूरी की पूरी फेरून की फौज डूब के समाप्त हो जाए। कहने का तात्पर्य है हारून और फेरून की फौज के अंतर क्या है? हारून कहते हैं महाराजा छत्रसाल, और फेरून कहते हैं औरंगजेब बादशाह को, कि औरंगजेब बादशाह की राह पर चलने वाला वो मानव। दिल्ली दरबार में बैठने वाले मानव को नहीं कहा कि जो संसार के अंदर जैसे औरंगजेब ने विश्वास नहीं किया, फतेह मोहम्मद ने विश्वास नहीं किया, इब्राहिम खान ने भी विश्वास नहीं किया, ना जाने कितने लोगों ने विश्वास नहीं किया, उन सब के लिए कहा गया कि जो व्यक्ति परमात्मा पर विश्वास नहीं लाएगा वो किसकी फौज में शामिल होगा? फेरून की। फेरून यानी नास्तिकता के अंदर वो शामिल माना जाएगा। और हारून यानी महाराजा छत्रसाल की फौज कौन सी होगी? कि जो परमात्मा के ऊपर आस्था लाएगी, जो पुराणनाथ जी पर विश्वास लाएगी। और वो कौन सी नदी पर पार होंगे? तो बोले ये नील नदी है। कौन सी नदी है? नील नदी। नील नदी यानी महा मोह माया का वो सागर, जिसको क्या बोला? मोह सागर। बैतरणी नदी हम देखना गरुड़ में आता है, गरुड़ पुराण के अंदर, कि बैतरणी नदी को पार होना है तो बोले गाय को दान कर देना ब्राह्मण को। बोलो श्री प्राणनाथ। कोई के पूछे महाराज केम गाय ने केम पार केम दाना पानो? तो बोले नी पूछड़ी पकड़ी नी बैतरणी नदी तरी जवा એટલે આપવાની। इसलिए देखना हर जगह आपको पुराने इतिहासों में एक प्रसंग मिलेगा कि ब्राह्मण यदि कथा सुनाने आए और हाथ में पैसे नहीं हो तो क्या दान देना चाहिए? गाय दान दे देनी चाहिए। भैंस या बकरा दान देना चाहिए नहीं। इसलिए अधिकतर गायों के दान देने का प्रसंग आता, और गायों के दान देने से बोले भव सागर से पार होया जाएगा। और कहने का तात्पर्य है कि बैतरणी नदी यानी क्या है? यही भव सागर। नील नदी यानी यही भव सागर। उस भव सागर में कौन पार होगा? तो बोले जो ब्रह्मवाणी के सहारे रहेगा। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना। इस आसमान और जमीन रूपी पाट के अंदर, संसार रूपी चक्की के अंदर मानो बोले मोह के बंधन में ऐसा पिसता है
कि पिसता पिसता मानव स्वयं समाप्त हो जाता है। उस समय कबीर साहब अगली चाकी में बोलते, चक्की चक्की सब कोई कहे, किला कहे ना कोई, जो किले सहारे रहे साबुत बचा सो। अपनी गाँव ની ઘટીઓ કહેવાય છે। શું કહેવાય? ઘટીઓના પડમાં જો દાણો પડી ગયો પીસાય કે નહીં પીસાય? પણ એક લાકડું હોય વચ્ચે, શું કહેવાય એને? જૂના જાણે છે, બોલો શ્રી પ્રાણનાથ। શું કહેવાય? ખીલડો બધું જે નામ લેતા હોય તો સમજી જાઓ, એ જ અમે જે કહેતા હોય। કારણ કે જો કિલ્લી સહારે रहा साबुत बचा सो, कि जिस प्रकार चक्की के किल्ली के सहारे जो व्यक्ति चला जाता है वो साबुत जाना बच जाता है, इसी तरह बोले ये कुलजम यानी ज्ञान के सहारे जो व्यक्ति टिक जाएगा वो साबुत बच पाएगा, और जो ज्ञान के सहारे नहीं टिक पाया वो पीस करके समाप्त हो जाता है। इसलिए इनको कहा दैनिक कुलजम तिनको, इनको किया गर्क, इनको किया गर्क, इनको बोले यहाँ डुबो दिया। पढ़ो मेरे कलाम को, बोलो श्री प्राणनाथ। क्या कह रही वाणी? पढ़ो मेरे कलाम को, का भागे सारी। राजी ने 4 हथियार दे दिया, ब्रह्मवाणी, वितक साहब, छोटी वृत्त और बड़ी वृत्त। ये परम धाम के 2 ग्रंथ है। और माया के कितने हथियार है? माया के अनगिनत हथियार है। अनगिनत में भी 4 हथियार। पढ़ने वाले इलम के और जादूगर होशियार और बाजे बजावन हार। पढ़ने वाले इलम के, कि दुनिया में ऐसे ऐसे ज्ञान को पढ़ने वाले होंगे कि परमात्मा को तुम्हें मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। अरे वे परमात्मा के नाम के इतने सवाल खड़े कर देंगे कि मानने वाला भी भ्रमित होकर के समाप्त हो जाएगा। इसलिए उनको क्या बोला? पढ़ने वाले इलम के। डॉक्टरों ने क्या बोला? कि हम ही दुनिया के भगवान हैं। साइंटिस्टों ने क्या बोला? हम ही दुनिया के भगवान है। अब धीरे धीरे डॉक्टरों ने और साइंटिस्टों ने मानना शुरू किया कि भगवान कोई और है। पहले तो साइंटिस्ट कहते थे पंखा हमने बनाया, आकाश से हमने विमान उड़ाए। बोले कौन से महाराज ने विमान उड़ाए? बताओ जरा। बोले इसलिए आप सोचिए, हमारे ऋषि मुनियों की कहानी कहूं, कोई कहता है कि कौन से महाराज ने ये विमान या ये ज्ञान दिया? आपको पता होगा, आर्यभट्ट ने क्या खोज की? शून्यवाद की, कि पृथ्वी गोल है। ये किसने कहा? आर्यभट्ट ने। सुश्रुत, अरे दुनिया में जब प्लास्टिक सर्जरी नहीं हुई थी उससे पहले के युगों में सुश्रुत ऋषि स्वयं प्लास्टिक सर्जरी करके व्यक्ति को सुंदर बना दिया करते थे। चरक, जो दुनिया के कोई रोगों को नहीं मिटा सकता वो रोग चरक मिटा दिया करता। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, और अनेक उदाहरणों में अनेक ऋषियों के नाम हैं। और तकरीबन 25 से 30 ऋषि हैं जिन ऋषियों ने सौर ऊर्जा को, जिन ऋषियों ने सूर्य विद्या को, अनेक ज्ञानों को जाना है और उन ज्ञानों का प्रचार किया। इसलिए पढ़ने वाले इलम के, जादूगर होशियारियां में चमत्कार करने वाला। इधर एक देवी आई से, बोलो श्री प्राणनाथ। घड़ा वाली। कौन सी देवी आई? घड़ा वाली। તમારે ઘડામાં ઘડો ભરી દેવીને ત્યાંથી લઈ આવવાનું, और एक दिन तुम्हारे घड़े में से रुपये भर भर के निकलेंगे। इधर दाहोद में खजूरिया की तरफ, बोलो श्री प्राणनाथ। इतने लोग घड़े लेकर के गए साहब। बोले पहले तुम्हारे घर में जितने रुपये वो घड़े में डालो, फिर उसके बाद से उस घड़ों में से रुपये पैदा होना शुरू हो जाएंगे। अरे कहीं झाड़ थोड़ी दुगवानो शुरू कर दे। बोलो श्री प्राणनाथ। हमारा फलिया घड़ा घड़ा लेके पहुंची गया। अरे शंकर वंकर छोड़ो, हाँ घड़ा वाली में जाओ। घड़ा लेके पहुंचा। कोरोना काल आयो। कोरोना काल ની અંદર વિચાર કર્યો, બોલા રૂપિયા, બોલે ઘડો ભરી ગયો હે। ઘડા ની અંદર જેટલા રૂપિયા ઘરના હતાથી થોડા ઘણા નાખ્યા, ઈ રૂપિયા પણ ત્યાં ફોગોઈને ખતમ થઈ ગયા। અને ઘણામાં તો એક રૂપિયો નીકળ્યો।
કહેવાનો તાત્પર્ય આ બધા જાદુગર હોશિયાર કેવા जादूगर होशियार संसार में अंदर अभी जादू विद्या करेगा कि बोले कोई इनके सामने टिक पाएगा। पढ़ने वाले इलम के और जादूगर होशियार और बाजे बजावन हार समझ लो बाजे बजावन हार डीजे वागे मारा वाला देह देती दौड़ी ना बैठे सत्संग माटे हरोज के पड़ जाए आओ जो सुंदर साजी आओ जो बीतक चर्चा आदा के આપણે મકનસિંહભાઈ સરપંચના હગા લાગીને એટલે જઈ આવી ઘણા કે કાળુભાઈ માસ્ટરના હગા લાગીને એટલે જઈ આવી ઘણા કોઈ બીજાના નામથી જાય હગા હગાને હગે આવે અરે હગે બોલાય એટલે જઈ આવી પણ આત્મા કલ્યાણ માટે કોઈ આવે આ સંબંધથી આવે બધા लेकिन आत्मा कल्याण के लिए आएंगे इसलिए कह रहे संगीत को आप सुनो और संगीत को सुन करके व्यक्ति की अंग थिरकने लगते हैं तो समझ लीजिए कि बाजे बजावाना हार कि ये आपके मार्ग को रोकेगा। और दूसरे क्या कहा और औरत बिरारी तजे कहने के तात्पर्य है कि जब माया इस संसार की माया हावी हो जाए तो बोले नारी जब अपने नारीत्व को छोड़ दे तो उस समय बोले ऐसी नारी से भी सावधान रहना। तो ये माया के 4 हथियार कहां बताए शुक्राना के प्रसंग में बोले ये 4 हथियार है और आपको मैंने 4 हथियार दिए इसलिए माया से सावधान रहना है। इसलिए माया से सावधान रहने का प्रसंग लिखा। बाकी आप पहले प्रकरण में देखना वाणी के पहले प्रकरण में लिखा है क्या है हवे पहला मोह जलने को वात तेता दिन रूपी दुख दुख रूपी दिन रात और दावानल बले कई भात क्या करे दावानल बलने का तात्पर्य दावानल बोलते हैं कि जो जंगल में झाड़ियों को टकराने से आग लगती है उसको क्या बोलते हैं दावानल। और बोले मानव में कौन सी अग्नि लगेगी तो बोले मोह की अग्नि लगेगी ईर्षा द्वेष की अग्नि की लगेगी लड़ाइयों की अग्नि लगेगी और बोले ये एक दूसरे से टकरा करके समाप्त हो जाएंगे धर्म में जा पाएंगे नहीं। सुख संकारिक में नवटली लक्ष्मी नारायण ने हरी बनी बोले वो सुखदेव को नहीं छोड़ी विष्णु भगवान को नहीं छोड़ी शंकर भगवान को नहीं छोड़ी। सुख संकादिकनी नवटली लक्ष्मी नारायण ने फरीवली विष्णु वैकुंठ लीलामाय सागर सिकरना वो क्या कहा कि जो सारे ब्रह्मांड के अंदर माया ही माया है तो बोले तुम्हें कहीं छोड़ने वाली नहीं है। कबीर साहब क्या कहते हैं काजल की कोठरी में कैसो ही स्यानो जाए पर एक लिख तो लाग ही पे लागी कि संसार में कोई कितना भी बुद्धिमान आ जाए पर बोले कभी ना कभी तो मोह के फंदे में पड़ेगा और तो इसलिए ये प्रसंग करे दही में तुमको कुलजम इनको किया गर्क पढ़ो मेरे कलाम को तो भागे सारी शक। यदि अपने संशय को मिटाना चाहते हो तो मेरी वाणी को पढ़ना मेरे ज्ञान को पढ़ना और इस ज्ञान को पढ़ने से तुम्हें आत्मा चिंतन और आत्मा मनन तुम्हारा जागृत होगा। वहां से आए बुढ़ानपुर और वहां से चल करके बुढ़ानपुर के अंदर एक और प्रसंग आता है। उस प्रसंग के अंदर सीधा उस प्रसंग में एक ब्राह्मण आता है बराड़ परगनी का ब्राह्मण। कौन सा ब्राह्मण बराड़ परगना है उस परगना का एक ब्राह्मण है। और ब्राह्मण जब कबीर की पोथी को लेकर के आया और ब्राह्मण जब लेकर के आया तो उस समय वो ब्राह्मण ने चर्चा में श्री जी साहब के दर्शन कर लिए। राजी महाराज के दर्शन करने के बाद वो ब्राह्मण क्या कहने लगा बराड़ परगने का ब्राह्मण तीन सुनी चर्चा कबीर और कबीर के बारे में उसने सुना और सुनने के बाद उसके अंदर की आत्मा ने जागृत होकर के दर्शन किया। तब क्या हुआ लगे कलेजे घाव और उसके दिल में घाव लग गए। तब क्या हुआ भूल गया शरीर को और धीरे धीरे प्राजी महाराज के दर्शन होने लगे। जब दर्शन होने लगा तो अपने शरीर को भूल गया। तब क्या कहने लगा और शान कछु न रही और नजर पहुंची बक्का में कि उसकी नजर कहां पहुंची परम धाम की तरफ। और उस समय उसको कुछ भी पता नहीं चला अपने शरीर का। तब घरों जाए पीछे फिरे घर में गया तू ही लाया
तू ही दिखाने वाला है, तू ही ले जाने वाला है और तू ही आया है। बस तू के अलावा कुछ निकलता घर में गया, शायद घर में जाकर के खाने का भी अता पता नहीं चला। पूरा प्रश्न पढ़ना। जो ताना कोरी के और जो ताना कोरी के, और उस समय कह रहे कि उस समय उनको ऐसा बेहोशी जैसा हो गया, आवे जाए फिरे फिरे के, और हर जगह उनको केवल परमात्मा दिखते और कुछ दिखता नहीं है। जो बात कहे उनको, जो किसी को भी कहता तो क्या कहता है? जो कहे तुम्हारे हो तुम ही हो तुम, कि तुम्हारे अलावा दुनिया में कोई नहीं है। और नामों से गाड़ी और मुंह से एक शब्द नहीं निकालता। तब पे आए हम, और कहने लगे हम आपके चरणों में आए हैं। जो चर्चा कर समझाइयो, और चर्चा कर समझाते हैं, पर इनको कुछ करता केवल दर्शन के अंदर उन्होंने जो पाया, उस दर्शन के बाद दूसरे दिन 2-3 दिन के बाद एक दिन से वहां पर श्री जी साहब दूसरे किनारे पर एक नदी थी, नदी के किनारे बैठे बैठे दातुन कर रहे थे, और दातुन करते करते दूसरे किनारे से वो ब्राह्मण आ रहा था। ब्राह्मण ने देखा कि वो मेरे धाम के धनी बैठे। ब्राह्मण भूल गया कि मेरे बीच में नदी है, दौड़ लगा पड़ता है और दौड़ता दौड़ता सीधा नदी में कूदा। श्री जी साहब कहने लगे उसको निकालो वरना इसका होश आने वाला नहीं। ब्राह्मण होश को बैठा, परमात्मा के दर्शन को किया था, इसलिए उसको निकाल करके ले आए। समेत कपड़े चला गया, गिर पड़ा बीच में, सुधना सान शरीर की गिरी पाग उतर उनसे और गिरा, और गिरने के बाद तेरे पेटे साथी दौड़ के निकाला नदी से, और उसको निकाला नदी में से और श्री जी साहब के सामने बिठाया और कहने लगे कि इनको जरा इस दुनिया में मोड़ो। तब श्री साहब आशीर्वाद देते हैं और वो बराड़ परगने का ब्राह्मण वापिस थोड़ा माया में लौट के आता है। कहने का तात्पर्य कि परमात्मा की एक बार उसको धुन लगी, वो सारी चीज में भूल गया। जैसे मीरा को धुन लगी तो मीरा को ये नहीं पता चला जंगल किससे कहते और राजमहल किसे कहते। मीरा निकल पड़ी और निकलने के बाद मीरा केवल परमात्मा के धुन में डूबी रही। मीरा को केवल परमात्मा याद आते रहे और मीरा उस कान्हा के प्रेम में डूबती चली गई। इसलिए मीरा ने कभी ढोलक नहीं बजाई, पर मीरा के भजन को लोग आज भी गाते हैं। मीरा ने कभी मंडलियों में नहीं जाकर के भजन गाए, पर मीरा की पंक्तियों को आज भी लोग पढ़ते हैं। मीरा की भक्ति के अंदर जो भाव फूटे, वो मीरा के भाव संगीत में परिवर्तित हो गए। लोग उनके भजनों को आज लोग गाते हैं। कहने का तात्पर्य, रस खान ने जब कृष्ण को पहली बार देखा तो रस खान स्त्री बनने को तैयार हो गया। रस खान ने साड़ी पहन ली, एक मुसलमान है। मुसलमान होने के बाद रस खान भूल गया कि मैं पुरुष हूँ, वो भूल गया कि मैं मुसलमान हूँ। रस खान परमात्मा के आनंद में डूब गया। कहने का तात्पर्य है कि यही श्री जी साहब को देखने के बाद बराड़ प्रज्ञ का ब्राह्मण भूल गया कि मैं कोई पुरुष हूँ, मैं कोई इस दुनिया का मानवी हूँ। उसको कहना एक ही उनके मन में आया, तू ही लाया, तू ही ले जाने वाला है, तू ही दिखाने वाला है और तू ही मेरा मालिक है। यही उसके शब्द निकलते हैं। अब यहाँ से श्री साहब चले जाते हैं कहा, रामनगर आए पहुंचे और रामनगर में आकर के वहां पर पहुंच जाते हैं। तब केतकी पर एक नदी है, उस नदी का नाम क्या है? केतकी नदी है। हाँ, स्थल बनाए के वहां पर एक स्थान बनाया रहने का, और गणेश महंत के बराबर। और गणेश महंत नामक एक साधु था, उसके आश्रम के बगल में एक आश्रम बनाया और आश्रम बनाने के बाद सब सुंदर साधु वहां ठहरने लगे। और रामनगर तक आते आते यहाँ पर एक व्यक्ति मिलता है। वो व्यक्ति, उसका नाम क्या है? हरसिंह करके नाम होगा। और वो व्यक्ति श्री साहब को भोजन के लिए न्योता देता है और भोजन के लिए जब लेकर के गया तो भोजन करवाया। भोजन करवाने के बाद कहने लगा कि हे श्री जी साहब, मेरा लफड़ा चल रहा है, यानी मेरी एक लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई में मैं हार रहा हूं। इसलिए हरसिंह एक ऊंचे आसन पर बिठा करके
श्री जी साहब को कहते हैं कि आप मेरी मनोकामना पूर्ण करो। हर सिंह की मनोकामना जब पूर्ण हुई, उस केस को जीत जाता है। धीरे धीरे यहाँ पर अनेक लोग खाने के लिए बुलाते हैं, अनेक लोग भोजन का न्योता देते हैं। उतने में पुरदल खान को संदेश औरंगजेब ने भेजा कि जाओ पुरदल खान और उन वैरागियों को पकड़ करके लाओ। पुरदल खान ने किसको भेजा जा? शेख खिजर को। शेख खिजर यहाँ पर आता है और आने से पहले रामनगर के राजा को संदेश भिजवाता है कि हे राजन, मैं आपके राज्य में रहने वाले उन वैरागियों को पकड़ने के लिए आ रहा हूँ। और वो पकड़ने के लिए जब आया तो उस समय राजा को खासे दूर पहले से सावधान करने के लिए कहा। इधर राजा को पता चला, राजा ने अपने सैनिकों को भेज करके कहा कि उन हिंदू वैरागियों को कहो कि यहाँ से चले जाए, और उनको जाने के लिए कहा। तब ये यहाँ से श्री जी साहब उनको उत्तर देते हैं कि हे राजन, हम यहाँ से जाने वाले नहीं है, हम थक चुके हैं और ये बादशाह हमारे पीछे पड़ पड़ करके हमें यहाँ तक भगा के लेके आया है। अब तो हम खुद जाना चाहते हैं, एक बार उनके दरबार में हम स्वयं प्रवेश करना चाहते हैं। और उस समय कई सैनिकों को भेजते हैं, पर वो श्री जी साहब नहीं मानते हैं। और उस समय एक मंत्री को भेजते हैं जिसका नाम है सुवंश राय। और सुवंश राय को जब भेजा, सुवंश राय को भी समझा के भेजा, और सुवंश राय आकर के विनती करते हैं कि हे महात्मा जी, आप यहाँ से चले जाइए सब लोग। पर श्री जी साहब कहते ना, हमें नहीं जाना। यों करते दिन दूसरे। उस समय कौन आया? शेख खिदर पहुंचे था। और उस समय शेख खिदर पहुंच गया। तब मुलाकात राजा सो करी। राजा से आकर के कहने लगे कि हे राजा, पकड़ दे वो वैरागी को। तब पहले आ ही बताए, और पहले आकर के बताए। तब राजा क्या कहता है? हम आए 3 काम को, हम जिस काम के लिए आए उसका तुम काम कर दो। पकड़ दो वैरागी तुम। वैरागी को पकड़ दो जरा। तब राजा बोलिया, और तब राजा क्या बोलता है? जो न कछुए काम। कहने लगे कि हम इनको पकड़ना चाहते नहीं, तुम जाकर के खुद पकड़ करके लेके आओ। और उस समय ये बात सुन करके शेख खिदर घबराया। शेख खिदर कहने लगा कि क्या इस हिंदू महात्मा में ऐसी कौन सी ताकत होगी जिसके कारण से कोई इनको पकड़ना नहीं चाहता। शेख खिदर के पास एक दीवान था उनका, जिनका नाम क्या? भिखारी। भिखारी दास कहता है कि हे सेनापति, आप मत जाओ, मैं खुद जाऊंगा। और वो हिंदू था। हिंदू होने के बाद आया श्री जी साहब के चरणों में, और श्री जी साहब के चरणों में आकर के क्या कहता है? कदमों लाग सिजदा किया। कदमों लाग करके सिजदा करके नमन करके क्या कहता है? हम आए ऊपर तुम। कहने लगे हम आपको पकड़ने आए हैं, क्या तुम्हारी खबर है? क्या तुम चाहते हो? उस समय श्री जी साहब कहते, हे भिखारी दास, हमारे पास बैठो, हम आपको कुछ समझाएंगे। यदि वो आपको समझ में नहीं आए तो आप हमें पकड़ के ले जाना। उस समय कुरान, पुराण, भागवत, रामायण सभी प्रमाणों से समझाया, कयामत के 7 निशानों को भी समझाया, हिंदू पक्ष के अनुसार परम ब्रह्म का आने का संदेश समझाया। भिखारी दास समझ गया। भिखारी दास जानने के बाद शेख खिजर को कहा कि हे शेख खिजर, ये कोई और नहीं, हमारे अनुसार वो बुद्ध निष्कलंक स्वरूप है, और तुम्हारे अनुसार वो अकरुल जमा इमाम महदी है। आप उनके चरणों में जाओ, आपको यहाँ पर ज्ञान मिलेगा। वो आपका खावन बन के आया है। शेख खिजर अपनी फौज को लेकर के पहुंचा, और जब शेख खिजर उनकी फौज को लेकर के पहुंचा तब उनके दर्शन करता है। और दर्शन करने के बाद तब शेख क्या करता है? सभा में बैठ करके ज्ञान सुनने लगा। और जब ज्ञान सुनने लगा तो वहां के मुसलमानों को लगा कि ये शेख खिजर इनको पकड़ने आए। शेख खिजर पकड़ने आए से मुसलमानों ने बोला हम सहायता करते हैं, और सहायता करने के लिए मुसलमान वहां के दौड़ करके आए। शेख खिजर देख करके समझ गया कि सभा में उत्पात मचा रहे। तब उसको क्या आया? कलानत। और उस समय ये क्या कहते? तब शेख को गुस्सा चढ़ा। और उस समय कह रहे तब शेख को गुस्सा चढ़ा। उन्हें उठाए दो मुंड तक। कहने लगे, अपनी फौज को आदेश दिया कि हे मेरी फौज उठो, और इन मुसलमानों को कोले उठा करके फेंक दो। और सभा में आने वाले सभी मुसलमानों को वहां से मार पीट करके भगा दिया।
दोनों धक्के इनको और धक्का दे करके इनको निकाल दिया। करने लगा हरकत हरकत। बोले हक के सामने हरकत करने लगा। और इस तरह यहाँ पर वो सभा में सत्संग सुने और जान गए कि मेरी आत्मा का नाथ है। और जब मेरी आत्मा का नाथ है तब यहाँ के राजा को कहा कि हे राजा, तुम्हें धिक्कार है, तुम्हारे घर में गंगा बह रही है और तुम उसमें स्नान करना चाहते। अरे तुम्हारे घर पर स्वयं खुदा पधारे हो, परमात्मा पधारे हो और तुम के साथ दुर्भाग्यशाली राजा हो। बोले तुम उनकी पहचान नहीं कर सके, तुम उनको समझ नहीं पाए। मेरा आदेश है कि तुम जाकर के चरणों में झुकना। शेख खिद्र तुम्हें कह दिया। शेख खिद्र ने कहा और शेख खिद्र आकर के अपनी सेना को बोलते हैं कि हे मेरे साथियों, हमने बहुत युद्ध लड़े और बहुत युद्ध लड़ने के बाद बोले आज हम श्री जी साहब के चरणों में आए, आज हमारे आत्मा के नाथ के चरणों में आए हैं। मैं चाहता हूं कि यदि आप सच्चे मुसलमान हो और सच्चे हिंदू हो तो बोले जान लेना कि हिंदू के लिए पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद है और मुसलमानों के लिए आखिरी जमा इमाम महदी है। जिनको इनके चरणों में जाना है और मंत्र को ग्रहण करना है, दीक्षा लेना, वो ले ले। सबसे पहले शेख खिज्र स्वयं दीक्षा लेता है, स्वयं तारतम मंत्र को लेता है, उनके साथ उनकी फौज के लोग भी ले गए। कई लोगों ने यहाँ तारतम लिया और सब लोगों ने तारतम लिया। इधर ये बात किसने सुनी? राजा ने। और राजा कहने लगे कि हमें भी न्योता देना पड़ेगा। तो मंत्रिमंडल से सलाह किया। मंत्रिमंडल वालों ने राजा को समझाया कि हे राजन, उनके नजीक मत जाना। तो बोले क्यों? तो बोले प्राणनाथ जी भुरकी डालते थे। क्या डालते हैं? सिर में भुरकी डालते। जो व्यक्ति इनके सत्संग में जाता है उनके शिष्य पीछे से खड़े रहते और सिर पर थोड़ी भुरकी डाल देते। उसके बाद बोले वो उनके गुण गाने लगता है, बाकी उनकी बात को कोई ठुकराता। यही शेख खिद्र बोले आया, इतना आगे से शोर करता हुआ आया और यहाँ आने के बाद बोले उनका गुलाम बन गया। यही भुरकी का पावर है बोले। और राजा को डराया से भुरकी के नाम से। और राजा न्योता दिया। न्योता देने के बाद खाने के लिए बुलाया। राजमहल में श्री जी साहब सब सुंदर साथ को खाने के लिए बिठाया। राजा दूर से अपने सैनिकों को पीछे से लेकर गया। मंत्रिमंडल वालों को बोला कि आप पीछे से ध्यान रखना कि मेरे सिर पर कोई भुरकी ना डाल दे। इसलिए सावधान रह करके आया। और आने के बाद यहाँ से राजा दूर से प्रणाम करता है और दूर से प्रणाम करके चला जाता है। राजा दूर जाकर के कहता है आज मेरे पर भुरकी नहीं डाली मुझे, मैं बच गया। कहने का तात्पर्य यही है कि शायद भुरकी नहीं, ये ज्ञान रूपी भुरकी थी। वो तो दुर्भाग्य है कि गंगा के किनारे रहने के बाद जो गंगा में स्नान ना कर सके तो उसको क्या कर सकते, वो दुर्भाग्यशाली है। इसी तरह परमात्मा के सानिध्य में आने के बाद जो परमात्मा के ज्ञान को श्रवण नहीं कर सके उसको और ज्यादा क्या कर सकते और उसको कुछ कह सकते नहीं है। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी यहाँ से श्री साहब गढ़े में जाते हैं और गढ़े में कुछ लोगों ने सोचा कि हम इनको लूट लेंगे। बुरी नजर की और बुरी नजर करने के बाद गढ़े की धरती में भी आफत आ जाती। उस धरती को श्रापित धरती कर दिया और गढ़े वाले लोगों का, गढ़े नाम की जगह के लोगों का दुर्भाग्य बना और वहां के लोगों को बहुत कष्ट पड़ा जो श्री जी साहब और सुंदर साहब को लूटने की आशा रखते हैं। और यही एक सुंदर साहब मिलते हैं सुजान सिंह के साथ देवकरण जी आते। कौन आते हैं? देवकरण जी। और देवकरण जी यही श्री जी साहब से मुलाकात करते हैं। देवकरण जी महाराजा 17 साल से कहीं नाराज होकर के चले आते हैं और यहीं पर यह प्रसंग आता है कि देवकरण जी जब उनको पहचान जाते हैं और पहचानने के बाद कहने लगते हैं कि यही बुद्ध निष्कलंक स्वरूप है जिनके बारे में मेरे चाचा राह देख रहे। और ये प्रसंग आपका कल के दिन आएगा क्योंकि प्रसंग बदलता है। कल के दिन का प्रसंग आप सुंदर साथ सही समय पर आएंगे तो शायद ये पूरा पन्ना जी का प्रसंग कल आप श्रवण कर पाएंगे। तो कल के प्रसंग का आपका अंतिम दिन होगा। प्यारे सुंदर साथ जी 8 दिन तक आप लोगों ने बड़े शांतिपूर्वक इस भीतर को श्रवण किया। गौरकुंडिया समिति कहती थी कि ये बोले मेरे घर का, सरपंच साहब बोलने लगे कि मेरे घर का आधा होल भरेगा कि नहीं भरेगा, पर राज्य की कृपा, एक बार आप कामना करो और
काम संभव ना हो ऐसा हो सकता नहीं। मेरे बगल में बैठे उधर केशव साहब बैठे, मास्टर साहब बैठे हैं मंडोर से। बोरकुंडिया में भी और मंडोर में जैसे बीतक हुई थी पिछले साल, जिन्होंने कल्पना की थी नहीं की थी कितने भी लोग होंगे पिछले साल से अब भी मंडोर में इस साल की संख्या आपने देखी होगी कि कितनी संख्या। राज्य की कृपा है। आप सुंदर साथ एक बार कामना करो और वो कामना पूरी ना हो, ऐसा कभी संभव नहीं होगा। आज के प्रसंग में आपने सुना होगा किस प्रसंग के अनुसार जो सुंदर साथ कामना करेगा, जो इच्छा करेगा, उनके अवश्य अरस स्वीकार करते राज्य। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी जो परमात्मा के मार्ग में कामना लेकर के निकल पड़ता, उन सब सुंदर साथ की राज्य इच्छा पूर्ण करते हैं। बोरकुंडिया समिति को राज्य महाराज की असीम कृपा पर से, क्योंकि 7 दिन और 8वें दिन तक हर सुंदर साथ यहाँ पर शांति पूर्वक ज्ञान को श्रवण किए। कल का 9वां दिन होगा और 9वें दिन में आपने राज्य की वाणी को श्रवण किया, आप अपने साथियों के इतिहास को सुने। प्यारे सुंदर साथ जी, ये हमारा अहोभाग्य है कि हम भीतर को श्रावण में श्रवण कर पाए। तो आज की ये रात्रि का दिन था, कल तो हम दिन के अंदर श्रवण करेंगे 11 से लेकर के 2 बजे तक के समय के अंदर। प्यारे सुंदर साथ जी समय सर आप सुंदर साथ अवश्य पधारे। सब सुंदर साथ के लिए मैं इतना कहूंगा कि बोरकुंडिया के और तमाम सुंदर साथ जो मंडोर से आने वाले, कुटाजा से आने वाले और मोटी मलू, नानी मलू और साथ में पुना कोटा से भी आने वाले सभी सुंदर साथ के ऊपर राज्य महाराज की असीम कृपा बरसे और असीम मेहर बरसे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के विषय को यही पूर्ण करके सब सुंदर साथ मिलकर के चौपाई दोहराएंगे। श्री महामती कहे ये साथ जी, श्री महामती कहे साथ जी, गड़े की बीतक, गढ़े की बीतक कछु का पीछे रही है, कछु का पीछे रही है। सो कहो कमहा का, सो कहो कमहा का, सो कहो कमहा का। बोलो श्री प्राणनाथ। प्यारे सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ खूब प्रेम थी श्री राज्य महाराज चरणों में अपने अर्जी बोलशु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे पिया जी तुम होते
श्री प्रसाद